Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Let's check your person's energy today. Again, it's a collective reading, so take what resonates. Timeless reading, so whenever you see this, it might resonate with you. And a gender neutral reading because energies don't have any gender. So let's start. क्या स्टार्ट करते हैं? पहले देख लेते हैं what is your person trying to hide from you and in general. So I'll use this black, deep, dark, hidden thoughts wala cards and see what is. I'll take 3 cards from each deck. I'll use 4 decks today. I'll take 4 decks and see. Try to catch your person's exact energies at this very moment for you and in general. So let's begin with what your person is trying to hide from you and in general. I'll take 3 cards and see what comes up. Your person is a little restless, or you might be a little restless. So yeah, take your and your person's name and let's see. Bad timing. What else? It takes 2. What else? These 2 cards flipped together, but I'm not going to take this because I'll take 1 card. Up in the air and tangled web card came. Up in the air means your person is still indecisive, and tangled in web is he is trapped in his own situation right now. But I'm not going to take those cards because I want one specific card. Again, lot of cards. Your person wants to speak a lot. A lot is bottled up inside him or her. But still, I will take another card. One more card. That's it. Too many cards. But this card flipped. Complicated. So I'll take this. And the bottom of the deck is been burned. So your person is a runner. He or she is afraid to love someone. There is an unhealed trauma. He runs away. Whenever the situation gets a little serious, he runs away. And again, that day I was talking about various attachment styles and related childhood traumas. So this is your person. This reading is for a person who belongs to the disorganized attachment style person, suffering from serious self-worthlessness, always doing negative thinking about him and his situation. It can be her also. Take what resonates. And this generally starts when in your childhood आपके जो पेरेंट्स हैं, सॉरी मुझे हिंदी बोलना था, सो आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है दे वर लाइक ऑलवेज आपके पर्सन को अनवर्दी फील करवाते थे, लाइक तुझसे नहीं होगा, वो कितना अच्छा है, तू कितना घटिया है, तूने फिर गड़बड़ कर दी, तुझसे तो कुछ सही होता ही नहीं, अरे छोड़ ना, तेरे बस का नहीं है. ऑलवेज दे यूज्ड टू उन लोगों को ऐसे ही टोकते थे कि उनके बस की बात नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते. अरे बाप रे, तुझे इतना मार्क्स मिल गया, तुझे तो इतना मार्क्स मिलना ही नहीं था. एज इफ योर पर्सन नेवर डिजर्व दैट. सो ये जो हमेशा उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स, पेरेंट्स जो भी है, तो वो बचपन से ही ऐसे एक एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ उनके वो कभी अपने बात नहीं रख पाए. उनके हर बात को, उनके हर सुझाव को, सजेशंस को हमेशा झुटलाया गया. तू क्यों बोल रहा है, तुझे क्या पता है, तुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में, लाइक दिस सिचुएशन. और हमेशा उन लोगों को छोटा महसूस करवाया गया.
तो जब वो बड़े हुए तो वो भी उसी ट्रॉमा के साथ, अनहील ट्रॉमा के साथ बड़े हुए हैं कि आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, आई डोंट डिजर्व लव, आई डोंट डिजर्व रेस्पेक्ट, आई डोंट डिजर्व, आई एम टोटली वर्थलेस। अपने बारे में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग। और इनके वैलिडेशन क्या होता है कि आप अगर इनको चेज करो तो ये उनका वैलिडेशन होता है दैट ओके दिस पर्सन इज चेजिंग मी, दैट मीन्स आई एम स्पेशल टू दिस पर्सन, विच मीन्स आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम स्पेशल, आई एम प्रेशियस, प्राइसलेस, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या करते हैं, ये भागते हैं रिश्ते से और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि आप इन्हें फॉलो कर रहे हो या नहीं, आप पीछे पीछे आ रहे हो कि नहीं मनाने के लिए, बेग करने के लिए। अगर आप आओ तो ये उसको वैलिडेट करता है, उसको ईगो बूस्ट देता है। पर अगर आप नहीं आओ तो इट्स लाइक देखा मैंने कहा था कि ये इंसान फेक है, इसका प्यार फेक है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, द फर्स्ट कार्ड वाज बैड टाइमिंग। तो टू लिटिल, टू लेट, टेकन, नॉट रेडी टू लव अगेन द अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये लोग ना कभी किसी को मन से प्यार नहीं कर सकते, यू नो, दे प्रिटेंड टू लव। ये बहुत ही सुपरफिशियल लेयर पे प्यार करते हैं, क्योंकि इन लोग को हमेशा लगता है कि मैं अगर ज़्यादा प्यार कर दूं, अगर मैं ये दिखा दूं कि मैं इन पर इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, तो ये पर्सन, मैं तो अनवर्दी हूँ, तो ये पर्सन को जैसे ही महसूस होगा, पता चल जाएगा कि मैं इन पर डिपेंडेंट हूँ, मैं इनको प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मे बी बचपन में भी कुछ ऐसा ही उन लोगों के साथ हुआ है, इवन ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, स्कूल में पहला प्यार, क्रश, व्हाटएवर। सो it's always a bad time for them. कभी भी वो लोग पूरी तरह से किसी भी चीज में इन्वेस्टेड नहीं होते, वो लोग हमेशा चिकन आउट कर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट दे प्रिटेंड एज इफ दे आर वेरी मच इनटू द रिलेशनशिप। इवन इफ अगर वो लोग अभी थर्ड पार्टी के साथ भी है तो वो लोग यही प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ वो लोग थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, बहुत इन्वॉल्व है, रिकिंडल कर रहे हैं अपना प्यार। सब झूठ है, सब दिखावा है। ये लोग ये किसी के नहीं है, क्योंकि ये कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। नाटक बहुत अच्छे करते हैं बट इन्वेस्ट नहीं करते किसी भी, यू नो, दिखाते थे बहुत एम्पैथ, बहुत कंसर्न्ड, ऐसा कुछ दिखाते हैं, पर एक्चुअली ये नहीं है। इट टेक्स टू, he is a blame shifter, like I told, a typical disorganized, avoidant attachment style person. हमेशा blaming, someone is not committed, incompatible, conflicted, it takes two, हमेशा ये लोग blame shift करते हैं। ये लोग कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, पर आपके और उंगली करके बोलते हैं कि आप कमिटमेंट के लायक नहीं हो। ये लोग, इट्स लाइक उन लोगों को लगता है कि वो जानते हैं कि वो अनवर्दी है, वो आपके जो अटेंशन, जो प्यार, जो टाइम इन्वेस्टमेंट के जो वो लायक नहीं है। पर वो लोग उल्टा आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लायक नहीं हो। हमेशा ये ब्लेम शिफ्ट करेंगे, गैसलाइट करेंगे, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स। इनसे कुछ भी गलती हो जाए उसकी जिम्मेदारी आपकी। अगर थर्ड पार्टी के साथ सेक्स करते वक्त इन लोगों का इरेक्शन ना हो तो उसके लिए भी वो लोग आपको जिम्मेदार करेंगे, बोलेंगे कि तुम मुझे इतना स्ट्रेस दिए हो कि मैं यहाँ कुछ कर नहीं पाया। आपको लग रहा है ना बैड एग्जाम्पल है, बट आई नो समवन हु एक्चुअली गिव दिस रीजन। एनीवे, वो कहानी कभी और। कॉम्प्लिकेटेड, lots of twists and turns, naughty situation, precarious. Right now आपके पर्सन के लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, विच इज़ ऑब्वियस। बहुत कुछ चल रहा है उसके लाइफ में, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं जो एपरेंटली आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है। अंदर ही अंदर वो शायद दिखा रहे हैं कि बहुत ही सब कुछ ठीक चल रहा है, पर नहीं, एक्चुअली ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वो फंसे हैं। कैसे, क्या, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, so I don't know your story, but whatever the situation is, your person is very, you know, एक होता है ना कि कहाँ फंस गया, यहाँ से कैसे निकलूँ। So these are the things, but he is pretending to be very, you know, सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर उसके बहुत सारे assumptions, बहुत सारे inhibitions, बहुत सारे वो कहते हैं ना कि ही इज़ वेरी अनसेटल्ड। बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, टर्बुलेंसेस चल रहा है उनके दिमाग में। अब मैं देखूंगी कि
राइट नाउ वो क्या, उनकी करंट एनर्जी आपके प्रति ओवरऑल क्या है, देख लेते हैं। ओवरऑल उनका करंट एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स। इन देयर हेड, नहीं, I won't take so many cards. Come one by one, I'll take 2 more. I won't take so many cards. आपके पर्सन बहुत इन देयर हेड, ओवर थिंकिंग का कार्ड तो आया है। बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में जो वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। बोलना तो चाहते हैं, शायद वो आपको बोलते थे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब वो आप लोग कांटेक्ट में थे। आप शायद उनके थेरेपिस्ट का काम करते थे, फोकट का थेरेपिस्ट, फ्री का थेरेपिस्ट। पर अभी आप नहीं हो तो दे डोंट हैव एनीवन एल्स टू शेयर विद, बट मानेंगे नहीं। ट्रैवल, one more, moving on, and the bottom of the deck is reflecting. So they are thinking a lot, ये लोग दिमाग में ही रहते हैं, बाहर when it comes to action सोचना, सोच के राई का पहाड़ कर देंगे। In their head, overthinking, stressed, over analyzing, हर सिचुएशन को, सिर्फ आपकी ये सिचुएशन को नहीं, हर चीज को, हर किसी को, छोटे से छोटे, अगर सुबह उसका पॉटी भी नहीं होता है ना, तो उसको लेके भी वो ओवरथिंक करेंगे कि मुझे शायद एनल कैंसर हो गया। इट्स लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा सब कुछ एक्सट्रीम सोच रहे हैं ये लोग इस वक्त, यही उनका एनर्जी है। ट्रैवल कार्ड आया है, माइट बी दे आर ट्रैवलिंग समवेयर। वेकेशन में हो सकता है, बिकॉज फेस्टिव सीजन इज हियर, वेकेशन में हो सकता है, बट आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि शायद काम के लिए हो सकता है। आई नो इट्स क्वाइट कॉन्ट्रोडिक्टरी, क्योंकि हॉलीडे सीजन है और मैं बोल रही हूँ काम के लिए, बट यही एनर्जी आया है। मतलब उनको कहीं जाना है, कुछ काम कर, कुछ ज़रूरी है, कहीं ज़रूरी जाना है। आई नो दिस इज ये हैट, कैमरा, हॉलीडे वाला वाइब है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि उनको ट्रैवल करना है, कुछ इमीडिएट, कुछ और है। मूविंग ऑन, थैंक यू। नेक्स्ट, फिलहाल उनके लाइफ में जो है, देखिए मूविंग ऑन का कार्ड देख के फ्रीक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आपके साथ नो कांटेक्ट में ही है, ब्रेकअप में ही है, क्योंकि यही एनर्जी इस कलेक्टिव का आया है। अगर आपके पर्सन इन कांटेक्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मूविंग ऑन, थैंक यू। नेक्स्ट, आपके पर्सन की लाइफ में कोई नया आने वाला है या वाली है। देखिए 3 है यहाँ, आपकी एनर्जी नहीं आया है। एक थर्ड पार्टी का एनर्जी है, आपके एक पर्सन की एनर्जी है, एक किसी और की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और एंट्री मारने वाला है, कोई रोमांटिक अफेयर, ब्रीफ अफेयर, इवन इफ अ वन नाइट स्टैंड, कुछ तो होने वाला है। सर्दी का मौसम है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन्स करंट एनर्जी right now. Moving on, next, it's like your person is bored with the third party right now. He wants something new in his life, and वो आने भी वाला है या वाली है। So let's see what's your person's current energy for you. What's your person's current energy for you? आप सोचोगे कि कोई नया आ रहा है, नई में इंटरेस्ट है, तो मेरे बारे में क्यों, देख लेते हैं, देखने में क्या है, इसीलिए देखना चाहती थी। कंफ्यूजन, होप, और एक মিনিট, আমি রিডিং এ আছি, রিডিং করে আসছি। रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के कार्ड आया है। याद है वो प्रीवियस जो डेक था उसका बॉटम ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्शन ही आया था, यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन आया है, और ये रिफ्लेक्शन का कार्ड बहुत ही डार्क है। दैट रिफ्लेक्शन वाज मोर ऑफ अ
thinking about how to bring the positive changes in life. This reflection is black and gray. Bottom of the deck, irreplaceable. I think आपके पर्सन एक फाइनल डिसीजन ले रहे हैं. Your person is about to take a final decision about his life, about his relationship in general, about his relationship with you, and about you also. They have realized that you are irreplaceable. The way you love can never be matched. Ultimately, देखिए, in today's world or in any world, love is something that can never be replaced. Real love can never be replaced. I won't use the word conditional or unconditional because everything is conditional. हम लोग को सामने वाला इंसान प्यारा लगता है, उन लोगों को प्यार करके हमें अच्छा लगता है, इसीलिए प्यार करते हैं. So no love is unconditional. But even then, there is some purity about love. There is the way you were invested in the relationship. No one else was. The way you understood him, the way you accepted him with all his imperfections, flaws, traumas and everything, the way you tried to heal him, the way you triggered him to heal himself, आप जैसी कोई नहीं. So I think your person is going to take a final call, and the first card was confusion. Despite the third party and the fourth party, he is bored. He wants new spark in his life. He wants new sex. Want to experience new sex life, new chicks, new cocks, whatever your person's gender is. But again, despite all this, वो हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं सबकॉन्शियसली, पर कहीं आप मिल नहीं रहे हो. एंड दिस काइंड ऑफ अवॉइडेंस, जैसा अवॉइडेंट टिपिकली होते हैं, they first try to suppress their emotions, then they try to dismiss their emotions, and they take forever to process their emotions. अभी ये लोग confused है. I feel unclear about where we stand. वो खुद भी अभी भी ये ब्लेम शिफ्ट कर रहा है क्योंकि आई के जगह वी बैठा दिया है, जबकि आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इसीलिए आप बैठ के ये टैरोट देख रहे हो रीडिंग. बट योर पर्सन इज स्टिल अनक्लियर कि इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है अभी भी उनमें. बट अगेन ही इज होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप. आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट. सो यस, ही स्टिल वांट्स to take a leap of faith with you. Reflection, being away from you has allowed me to gain clarity. कह तो रहा है कि क्लैरिटी मिला है, पर अब आई डोंट थिंक कि अभी भी क्लैरिटी मिला है. अभी भी ये ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे में फंसे हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं. उनको ये तो पता है कि आप जैसी कोई नहीं, बट एट द सेम टाइम उनको नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप में वो अपने आप को कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने आप कितना इस रिलेशनशिप को दे पाएंगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसमिसिव अवॉइडेंस डू हैव देयर ओन सेट ऑफ सिक्योरिटीज. 3 लव मैसेजेस लेंगे. इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, रादर आपके पर्सन के हायर सेल्फ आप इस वक्त आपको क्या कहना चाहते थे. अगर नॉट सो मेनी कार्ड्स, आई एम टेलिंग यू ना, योर पर्सन इज इन अ वेरी इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशन. बहुत पूरा पेंट अप एनर्जी है, वोल्केनो की तरह सब कुछ अंदर दबा के बैठे हैं, बाहर लाना चाहते हैं, पर आप नहीं हो और कोई है भी नहीं सुनने वाला या सुनने वाली. यू आर राइट. अभी उनको समझ में आ रहा है. आई डोंट नो योर स्टोरी, किस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, क्या चाहते थे आप, बट वट एवर, जिस तरह जो भी आप कह रहे थे आपके पर्सन को, उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, वट एवर, आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है कि यस यू आर राइट. उसके ही नीचे कार्ड आया है, इज इट ओवर. अगेन यू नो, चार्ट डेक से कार्ड देखने का एक ही मतलब होता है, टू क्रॉस चेक द एनर्जी, टू सी इफ देर इज अ energy link between all the 4 decks. And yes, there is reflection, is it over, hope का कार्ड है, hope का कार्ड आया था. आपके पर्सन अभी भी अप्रीहेंसिव है क्योंकि शायद आप अभी उन्हें अब चेज नहीं कर रहे हो, आप अपना लाइफ जी रहे हो, विच इज़ वेरी गुड.
तो आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि अभी क्या फिर से चांस एक मिल सकता है, अभी क्या मुझे आना चाहिए सामने। आई वॉज हर्ट बाई यू, अभी ये सुखी लाला बन रहे हैं, अभी उनको, अभी ये सुखी लाला बन रहे हैं। लाइक अगेन ब्लेम शिफ्टिंग, you know, interconnecting energies. See, all four decks have same interconnecting energies: blame shifting, reflecting, wanting a second chance. So yes, definitely this reconfirms that हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कहा सुना हुआ हो, या फिर आपने कुछ ऐसे रिएक्ट किया हो आफ्टर द ब्रेकअप, किसी से कुछ कहा हो जिससे आपके पर्सन को लगा कि वो हर्ट है। वो ये नहीं देख रहे कि उसने क्या किया है, वो ये देख रहे कि आपने क्या किया। इट्स लाइक मैं कुछ भी करूँ, तुम क्यों ऐसे रिएक्ट किए। And the bottom of the deck is don't put up with my bullshit. ये आदमी औरत जो भी है, ये जानते तो है कि इनके ट्रॉमाज हैं, इनके इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये खुद एक प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। तो एट द सेम टाइम ये अपने हीलिंग पर काम नहीं करना चाहते, बट ये होता है ना कि ये आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं ही खराब हूँ। अगेन ये रोना चालू कर देंगे कि हाँ मैं तो लायक ही नहीं हूँ, इसीलिए तो ये हुआ वो हुआ। बट एक्चुअली दे आर जस्ट वांटिंग रीअश्योरेंसेस फ्रॉम यू कि आप कब बोलोगे नहीं 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 तुम बहुत स्पेशल हो, तुम प्रेशियस हो, तुम, दिस विल अगेन गिव अ बूस्ट टू देयर ईगो। Anyway, yes, your person is trying to take a final decision on your relationship and his life or her life in general. आपके फेवर में जाने के हाई चांसेस हैं, but again, like he only said, don't put up with his bullshit or her bullshit. Don't wait for anyone. His shit is his shit to clean. Your shit is your shit to clean. सो आप अपना शिट क्लीन करो, उसको उसका करने दो, साफ सुथरा होके आता है तो देखेंगे क्या होता है। एनीवे, टेक केयर, बाय।